Hello, students. This is your coach Mrinmay, and today I'm going on to start NIS Senior Secondary Optional Model, and the chapter number is 29, Writing Reports. So, dear students, due to some busyness about my office, so I was unable to send videos regularly. So from today I will try to send regular videos to your WhatsApp, and if you wish to consult anything and if you have any doubt, you can join me on WhatsApp live or Teachment live for discussions. So let us start the new chapter 29, Writing Reports. Look, here is an example is that here you can see something is written above the page, Ravi Industries, and they have given the full address of Ravi Industries. Then they write the addresses to Mr. S.K. Singh, Managing Director, and this report came out from Office Manager C. Rao, and the date was 7th July 2000. Now look the subject matter of this report on suitable premises for shifting the office of the company. That means CEO C. Rao, Office Manager, given the report to their Managing Director, suitable premises for shifting the office of the company. He wants to shift the office company as suggested. Now look the letter as suggested in your letter of 4th June 2000. I inspected a number of buildings in South Delhi. After careful consideration, I recommended Jain building, which is situated in Kailash Colony. This building I feel would be the most suitable for our requirements. So look student, you know that Managing Director given a letter to the office manager to search out a perfect office or suitable office for shifting their old office, and after visiting different places of Kailash Colony and Delhi, and the office manager had written a report to his Managing Director, to the company Managing Director, that he have choose a office and which is suitable for their office according to the Managing Director, and they have given the full information regarding this. The building consists of 2 stories, and has 15 rooms in all. The rooms are fairly large, 13 inch 20, well in the area. Since rooms are fairly, and we shall be able to put partitions in some of them. Look, this is full a report and a demo of a or sample of a report. So report is nothing, just to give informations to a subject matter, to higher officials or any government officials or anything which is needed. Now dear students, you have to know how to write a report. आपको जानना होगा कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द स्टेजेस. इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन का जो सोर्सेस है, इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसको ढूंढना होगा कि किसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है. और इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो और आप रिपोर्ट राइटिंग लिखने के टाइम पे भावुक ना हो. यू डोंट हैव टू यूज़ योर फीलिंग्स, जस्ट यू हैव टू यूज़ प्रैक्टिकल एंड फैक्ट्स ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग. नाउ लुक द सेकंड टॉपिक इज़ दैट टेकिंग नोट्स. आपको नोट्स लेना होगा, ठीक है. किसके ऊपर लिखोगे, इन्वेस्टिगेट करके नोट्स करना होगा. फिर इंटरप्रेटिंग एनालाइज द फैक्ट्स. फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं उसका आपको एनालाइज भी करना होगा.
और इंटरप्रीट भी करना होगा। जहाँ पर कुछ जोड़ना है या कुछ सुधारना है उसको आपको सुधारना होगा। एंड बहुत बार देखो इसके ऊपर बहुत फोकस दिया जा रहा है कि यू हैव टू सर्च आउट और फाइंड आउट द फैक्ट्स, राइटिंग द आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट का आउटलाइन लिखना होगा, किसके बारे में रिपोर्ट है ये, फिर एडिटिंग एंड रिवाइजिंग भी करना होगा, एंड देन सबमिटिंग द रिपोर्ट। तो ये हुआ आपका रिपोर्ट राइटिंग से पहले आपको क्या करना है, स्टेजेस। ये और एक एग्जांपल है रिपोर्ट राइटिंग का। तो आप लोगों को चैप्टर भी मैं तो आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप लोग यहाँ पर कुछ सैंपल भी देख लेना इस चैप्टर्स का। फिर देखो, बिफोर यू हैव मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग ए टो रिपोर्ट। टो रिपोर्ट लिखने के टाइम पर आपको कुछ लिखना होगा। ए टो रिपोर्ट जनरली इन द फॉर्म ऑफ मेमो। मेमो के अंदर इट इज़ एड्रेस टू वन सुपीरियर। ये किसी एक को लिखा जाता है, सुपीरियर जो होता है मतलब कि आपके किसी बड़े पोस्ट के लोगों को जो आपसे बड़े हैं। इन द सब्जेक्ट लाइन गिव द डेस्टिनेशंस एंड डेट्स ऑफ द टूर। तो ये हो गया एक मतलब कि डेस्टिनेशन और टूर रिपोर्ट में। तो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्या, आपके एग्ज़ाम में आएंगे कि आप कहीं पे गए हो और वहाँ पर आपने कुछ देखे हो और एज ए रिपोर्टर यू हैव टू राइट ए रिपोर्ट फॉर द इंसिडेंट। ये आपको लिखना होगा। आप एनआईएस के क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं एनआईएस का सिलेबस करा रहा हूँ, तो एनआईएस का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जहाँ जिस रिपोर्ट जितना भी आए हैं, ये क्या हुआ कि म्यूनसिपैलिटी के ऊपर रिपोर्ट लिखना है, डीसी के पास ऐसा, या डीसी को आपको रिपोर्ट करना है आपके एरिया में कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो गया है इसके ऊपर। तो ये तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के टाइम पे यहाँ पर और एक सावधानियाँ है कि यू हैव टू रिमेंबर दैट कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डोंट्स एंड डूज। तो डोंट्स में लिखा, डोंट लेट योर पर्सनल फीलिंग्स इंटरफेयर द राइटिंग द रिपोर्ट। जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे आपका पर्सनल जो फीलिंग्स है वो ना लिखो, और क्या करना है कि खाली ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लिखो, जो विषय है उसके ऊपर ही आपको देना है, ना कि आपका पर्सनल जो रिव्यू है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर देखो, डोंट बेस योर एनालिसिस ऑन ए सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। आपको जो रिपोर्ट आपको लिखना है वो किसी एक इंसान के एविडेंस के ऊपर नहीं लिखना है। उसको मैंने पहले ही बोला कि डाटा इंटरप्रीट करना है, एनालिस करना है, तब जाकर लिखना है। प्रोवाइड सस्टेनेबल सब्सटेंशियल एविडेंसेस। आपको एविडेंस के ऊपर ही रिपोर्ट को लिखना है। डोंट जनरलाइज विद प्रॉपर एंड लॉजिकल एविडेंस। तो लॉजिकल एविडेंस के बिना लिखना नहीं है, और वैलिड आर्गूमेंट्स के ऊपर लिखना है। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और आप अपने आप इसको कंक्लूजन में मत जाओ कि इसके वजह से ये हो गया है, या लोग इन मिनिस्टर के वजह से ये हुआ है, ये पुलिस के वजह से ये हो रहा है। कंक्लूजन आप तुरंत मत दो, इसके बारे में जानो तब जाके आप कंक्लूजन्स दो। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो स्टूडेंट्स लोग, आप लोग क्या करोगे कि इसके जितने सारे एग्जाम्पल है ये आपको करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिवन एक ओवरऑल क्वेश्चन है, गिवन बिलो इन इनकम्प्लीट रिपोर्ट फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इस वर्ड को यहाँ पर जो रिपोर्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ से उठा के, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में एग्जाम में आ चुके हैं कि कुछ तरह के यहाँ पर वर्ड देंगे और यहाँ पर जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है यहाँ पर ब्लैंक देंगे, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर नहीं कहीं पर छुपा है। तो आपको यहाँ से इसको उठा के ये उसको फिलअप करना है। और जो आज आपका जो होमवर्क रहेगा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, तो ये ही आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। ये पेज नंबर आपको मिलेंगे शायद 7 में, सॉरी 90, पेज नंबर 90 में। तो इसको कंप्लीट करके आज मुझे शाम के अंदर आपको देना है और हैंड राइटिंग क्लियर करना। और एनआईएस के जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना। और शाम को शायद मैं आज से आपको हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इसका वीडियो देंगे। और आप लोग क्या करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप में लिख के देना। मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। और ये वीडियो शायद आपको अच्छा लग रहा है। और मैं ऑनलाइन लाइव भी वीडियो आप लोगों को वीडियो क्लास दूंगा, क्योंकि नेटवर्क इशू थोड़ा होता है और इसलिए मैं ऑनलाइन या लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। और इस वीडियो को आपको समझने में कोई भी परेशानी हो या कोई भी डाउट हो, मुझे लाइव या व्हाट्सएप में लिख सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और काइंडली आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे इस कमेंट में या व्हाट्सएप में दे देना। और
मुझसे डायरेक्टली अगर बातें करना है तो मेरा फ़ोन नंबर तो आपको आपके पास है ही है, या आप मुझे पूछ लेना, मैं वो अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। मुझे डायरेक्टली एनआईएस के बारे में क्वेश्चंस या डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हर कोई अपने घर में सेफ रहो, और अभी के लिए बाय। थैंक यू।